ये सीखना ठीक है। चलो हाँ जिससे चलो am I audible to you online? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fine. So tell me, how was your MT? How's your MT? Tell me. Sir, a lot of biomolecule questions came. हाँ हाँ बोलो। है क्या सबके पास एमटी का पेपर है? मोबाइल में ही तो खोलो। Yes, sir. एमटी का पेपर डिस्कस करेंगे एक बार। and then we'll go ahead. कुछ डाउट्स डिफिकल्टीज है तो पूछ लो एमटी में। बोलो। Sir, 167th question. 167 ट्रांजिशन से स्ट्रक्चर ये तो करना है अभी। एंजाइम रिएक्शन क्या है इन ट्रांजिशन से वो करना है अभी। एंजाइम अच्छा, so ये सारे बायोमोलिक्यूल्स के क्या? बायोमोलिक्यूल्स क्या वो करना है हमें पास। हमने प्रोटीन्स तक ही देखा था ना बायोमोलिक्यूल्स। एंजाइम्स करने हैं अभी। न्यूक्लियोटाइड्स के बाद एंजाइम्स करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बाद। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 3 ट्रांजिएंट और अनस्टेबल होता है ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन वो क्या है कैसे बनता है वो हम बाद में देखेंगे। और सर बाकी बायोमोलिक्यूल्स के ही है जो आगे के हैं। हाँ बोलो कंप्लीटेड पार्ट से है क्या? नहीं सर। हाँ तो एंजाइम्स के अगर है तो एंजाइम में करना है अभी तो वो तो कवर हो जाएगा जैसे हम आगे करेंगे उस तरह से। और बॉटनी में कुछ डाउट? वन 31 microtubules from opposite poles of spindle get attached to kinetochores of sister chromatids during metaphase 2 of meiosis. Metaphase 2 of meiosis 2. During metaphase 2 of meiosis 2, you have your chromosomes in the cell like this. You have this cell. Meiosis 1 has been completed. हमने देखा था meiosis 1 में homologous chromosomes separate. I think we have not done up to that point. So in meiosis 1, homologous chromosomes separate.
So what you have after सर meiosis 1, जाइगोटीन तक meiosis, किया है हमने. हाँ, तो जाइगोटीन में पेयरिंग हुआ था. तो मेटाफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दो, वो दो अपोजिट पोल्स में जाते हैं. So one set of 23 chromosomes will go to one pole, another set of 23 chromosomes will go to other pole. ठीक है, दो सेल्स बनेंगे हर बार. हर एक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो इस फॉर्म में होने वाला है with two chromatids. Now when the same cell with 23 chromosomes starts meiosis 2, the chromosomes are arranged like this. Half number of chromosomes in this manner. And then spindle fibers from one pole will get attached to one kinetochore, from the other pole to other kinetochore. The same condition is seen during metaphase of mitosis. Again, that option is not given, I think. Metaphase 1 is given, but metaphase 1 will not be visible like it. In metaphase 1, I will tell you that in metaphase 1, you will see the structure something in this manner. Suppose this is the cell. You have homologous chromosomes. We have taken an example of n equal to 4, 2n equal to 4. So these are same chromosomes from one parent interstate, and these are two identical chromosomes from the other parent. They are arranged in this manner. This is the pair of homologous chromosomes. This is also another pair of homologous chromosomes. In humans, you will have such 23 pairs arranged on the equatorial plane during metaphase 1 of meiosis 1. And then your spindle fibers get attached like this. One chromosome is attached to one pole only. There is no spindle on this side, on the other kinetochore. So when these microtubules depolymerize, half of the chromosomes go to one pole, half of the chromosomes go to other pole. So meiosis 1 is reduction division, but in meiosis 2, this metaphase is very similar to your metaphase of mitosis, where each chromosome is attached to both poles. So metaphase 2 is correct answer. और बोलो. All morphology questions were based on examples. All. Tell me any more doubts? Only 52. Hormonal control of secretion is carried out by local. This is from digestion chapter. Actually, this control is exercised by hormones which are produced by gastric as well as intestinal mucosa. Option 3 should be correct here. The innermost lining of stomach, innermost lining of alimentary canal is termed as mucosa. So innermost lining of the stomach is gastric mucosa. Innermost lining of intestine is intestinal mucosa. Now here there are some cells which are endocrine in nature. That is, they release chemicals which are termed as hormones. And then these hormones control different aspects of your gut, like motility of the gut, secretion of digestive juices. They are controlled by these different hormones. There are various hormones, like you have gastrin, then cholecystokinin, secretin. There are several different hormones which are secreted by your digestive canal, mucosa, innermost place. So their option 3 should be correct. But we have not yet done it. We'll cover that when we look at our chapter of digestion. 127. The key features of metaphase are spindle fibers attached to kinetochore chromosomes. कोई भी मेटाफेज देख लो, ये देखो, माइटोसिस का देखो, meiosis का देखो. Spindle fibers are attached to kinetochores of chromosomes. That is there during metaphase. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plane. All chromosomes get along that equator of the cell. So second option is also correct. Splitting of centromere.
When the centromere is split, in which phase centromere splits? Metaphase or what will happen after splitting of centromere? Tell me, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, centromere split कब होता है? अब यहाँ पे समझो ये centromere split हुआ, in the center longitudinal split हुआ इस तरह से. ये कौन से फेज का डायग्राम है? Anaphase. During anaphase, correct. Centromere split during anaphase. This is a characteristic feature of anaphase. So first and second statement that spindle fiber is attached to kinetocost. Yes, it happens during metaphase. Then chromosomes are arranged at equatorial plane. That is also true. But option 3 is a feature of anaphase. So option 4 should be correct here, both 1 and 2. Okay. 109. Match the columns 1 and 2. These spores are always endogenous. Aplanar spores, non-motile spores. They can be endogenous as well as exogenous. Fine. Conidia are always exogenous. So C1. Ascospores are always endogenous. D2. Basidiospores are always exogenous. E1. A2, C1, D2, E1. A2, C1, D2, E1. Forget about B because B has both. A2, C1, D2, E1. Where is that option? Option number? Option 3. So you can mention aplanospore as exogenous or endogenous, both. Ascospores are produced in SI instead the cyclic structure. Do you remember the structure? Ascus का structure याद है? फंगस में हमने इस तरह से structure draw किया था, एक sac-like structure. fungi. सर वीडियो बंद हो गया. And you have 8 ascospores are produced in this manner. Video बंद हो गया? नहीं सर मैंने पिन नहीं किया था. Okay. इस तरह से 8 ascospores प्रोड्यूस होते हैं. ये जो sac like स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है एस्कस. और ये जो स्पोर्स है these are ascospores. They are always produced inside the sac like structure, so they are always endogenous. और बेसिडियोस्पोर्स में हमने क्या देखा था? एक स्ट्रक्चर होता है लार्ज Globe fungi. इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था बेसिडियम. बेसिडियम के ऊपर वेरी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर. इन प्रोजेक्शंस को हमने कहा था स्टेरिगमाटा. स्टेरिगमाटा. एंड इसके ऊपर 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दे आर ऑलवेज एक्सोजेनसली प्रोड्यूस. तो ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस नहीं होते. These are 4 basidiospores. Conidia are arranged in basipetal succession. रामस होता है, फिर मेटियोली होती है, याद है? फिर स्टेरिगमाटा होती है. 3 लेवल्स ऑफ ब्रांचिंग देखे थे हमने. Conidiophore का फर्स्ट लेवल ब्रांचिंग इज ramus. Ramus again branches to form metioli. Metioli again branch to form स्टेरिगमाटा. और उसके ऊपर स्मॉलेस्ट स्पोर इज एट द बेस, लार्जेस्ट स्पोर इज एट द अपेक्स. बेसिपेटली आ रहे हैं. पर कोनिडिया आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनस. वो किसी सैक में क्लोज नहीं होते. सो कोनिडिया आर ऑलवेज एक्सोजेनस. कोनिडिया को कोनिडियोस्पोर्स को बोथ आर सेम. थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट. और बोलो. वन 110 का आंसर क्या है? विच इज इनकरेक्ट अबाउट साइकोमाइसिस? क्या इनकरेक्ट है?
सर थर्ड वाला, असेप्टेड सिनोसाइटिक तो है फाइकोमाइसिस में, दैट इज करेक्ट। सर थर्ड वाला उनने नॉन मोटाइल और मोटाइल को अलग अलग कर दिया। हाँ करेक्ट। थर्ड में देखो क्या लिखा है उन्होंने, asexual reproduction takes place by motile aplanospores, which is wrong. Aplanospores are non-motile. Zoospores are motile ना, बिल्कुल उल्टा कर दिया। Non-motile zoospores and motile aplanospores. That is option 3 is wrong. सर 122 वाला क्वेश्चन। हाँ एक मिनट, जाइगोस्पोर भी फॉर्म होता है, म्यूकर में देखा था हमने, जाइगोमाइसीट्स में। और व्हाइट स्पॉट seen on mustard leaves are due to parasitic fungus albubon, which causes white rust of crucifers. Mustard का white rust. So 1, 2 and 4 are correct. He is wrong. कौन सा 1? 120? 122 122। A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase. देखो थैलॉइड या इरेक्ट कहने के बाद ही मॉसी होना चाहिए। थैलॉइड है तो आपको हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेडाप्सिडा में थैलॉइड मिलेगा, और इरेक्ट है तो आपको मॉसिस में इरेक्ट गैमेटोफाइट मिलता है, लीफी गैमेटोफाइट। Is represented by haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the algae gametophyte. क्यों नहीं आंसर? क्योंकि अलगे में ऐसा मिलता ही नहीं ना हमें, अलगे में ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे स्पोरोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ऐसा मिलता ही नहीं अलगे में। दिस इज अ वेरी peculiar characteristic, और थैलॉइड और इरेक्ट फेज बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड, सो दिस इज सीन ओनली इन ब्रायोफाइट्स, अलगे में हमें ये नहीं मिलेगा। ओके एक काम करो, इंसर्ट ये सबने पेज नंबर 43 खोलो, पेज नंबर 43 दिया है, देखो पेज नंबर 43 पे फर्स्ट पैराग्राफ देखो, वही वहां पे प्रिंट किया है फर्स्ट पैराग्राफ, कॉपी हाँ पेस्ट। yes, sir. और बोलो, तो कुछ डाउट्स? हो गए? एक बार सॉल्व कर लेना फिर से बॉटनी का पेपर, तो कम से कम जो नहीं हुआ है वो छोड़ दो, लेकिन जो हमने किया था वो आंसर की देखकर सर एक बार क्रॉस चेक कर ले। 149 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या? ओके 143 एंड 149, 143 देखते हैं पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शन in respect of characteristics to respective group. Cyclostomes, chondrichthyes, osteichthyes. Okay, cyclostome sucking mouth, वो करेक्ट है। chondrichthyes में वेंट्रल माउथ है, शार्क फॉर एग्जांपल, cartilaginous species। osteichthyes में टर्मिनल माउथ है, so one is correct in all। Scales absent in cyclostomes, placoid scales in chondrichthyes, cycloid timoid scales in osteichthyes. This is also correct. Cyclostomes and chondrichthyes are marine. Osteichthyes can be freshwater or marine. Third is also correct. 6 to 15 pairs of gills, 5 to 7 pairs of gills without operculum, 4 pairs of gills with operculum. 4 is also correct. All of them are correct. All characteristics are correct. यहाँ पे कोई wrong ही नहीं। और 143 और कौन सा? Sir, 149. I got 149. I got it. Okay. Yeah. सर ब्रीदिंग के बहुत क्वेश्चंस थे। हाँ ठीक है, करेंगे।
हम ब्रीदिंग चैप्टर करेंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे वो क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। बायोमोलिक्यूल्स और 3-4 लेक्चर्स पूरा एंजाइम का पार्ट देखना है हमें। एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट। डाइजेशन, सर उसके बाद 165 डाइजेशन करेंगे, देन ब्रीदिंग। 165 ये भी आपका एंजाइम का पार्ट है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है वो। ये डाइजेशन का पार्ट इनिबिशन ऑफ नहीं है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। नहीं, डाइजेशन का नहीं है, ये एंजाइम्स का है, बायोमोलिक्यूल्स का, कॉम्पिटिटिव हाँ, इनिबिशन। ओके, सर 172 ब्रीदिंग का क्वेश्चन है। 172 overall increase in the thoracic volume is causes increase in pulmonary volume because space between two pleural engines is maximum, lungs are covered by a single pleural engine. Option 3 is correct here. Lungs adhere to the wall of the thoracic chamber by means of pleural vein. हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तब मैं आपको बताऊंगा आपका जो आउटर प्लूरा होता है, दैट इज विसरल प्लूरा, या आई एम सॉरी पैराइटल प्लूरा, that is attached to the inner wall of the thoracic chamber, and when inspiration takes place it is with the help of some muscles that thoracic chamber का वॉल्यूम बढ़ता है। तो जैसे ही thoracic chamber का वॉल्यूम बढ़ता है उसके साथ लंग्स भी खींचे जाते हैं, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ता है। और फिर लंग के अंदर तो हवा रहती है, हम एक्सपायर करने के बाद भी, एक्सपिरेशन के बाद भी देयर इज सम एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो जो एयर का प्रेशर है अंदर वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। लंग में एयर का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर से हवा अंदर आती है, इट रशेस इनसाइड, दैट इज इंस्पिरेशन। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट, लेकिन इसके लिए हमें एनाटॉमी पता होना जरूरी है। और सर 180 क्वेश्चन, 180th 180 लास्ट क्वेश्चन सर, 180 हाँ। asthma and emphysema. Yes, these are the disorders of LRT, lower respiratory tract. सर लोअर LRT कैसे, के ब्रोंकियोल्स disorders की डिजीजेस है ना, ये तो अपर होना चाहिए ना। नहीं, ब्रोंकियल मतलब आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। ब्रोंकियोल्स मतलब emphysema, लोअर होता है। हाँ, ब्रोंकियल से आगे आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। आपका ट्रकिया से ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं ना, वहां तक यूआरटी आता है, उसके बाद ब्रोंकाई इज अ पार्ट ऑफ अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर और जो अस्थमा है वहां पे ब्रोंकियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। हाँ ओके, गॉट ब्रोंकियोल्स इट, समझ कॉन्स्ट्रिक्ट, गया। और उससे फिर एक्सहेलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। इनहेलेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, I एक्सहेलेशन thought बिकम्स even डिफिकल्ट, उससे एक bronchioles are a व्हीजिंग part साउंड of होता upper है। respiratory system. Okay, got it. नो दे आर नॉट। सो LRT इज करेक्ट। ये 180 का भी एनसीईआरटी में दिया है, देखो ब्रीदिंग का चैप्टर जो है ना, हाँ पता है सर, पेज लास्ट नंबर, वाले पार्ट में दिया है। हाँ 275 देखो, पेज 275, disorders of respiratory system। टू 275 दिया है नीचे। डन, शुरू करें बायोमोलिक्यूल्स वाली। एक बार सॉल्व कर लेना ये पेपर,
और कुछ कहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछ लेना फिर। कहाँ तक किया था हमने? प्रोटीन के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया था। So what is remaining from proteins now? We have to look at the tests. I think we were doing conjugated, right? नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया ना, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन कर लिया था हमने पूरा। आई थिंक हमने सिंपल तक ही किया था बस। नहीं नहीं नहीं, हमने सिंपल प्रोटीन किया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स किया, हमने सारे टाइप्स लिखे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के। बताओ एक बार, देखो आपके नोट्स कहाँ तक किए हमने। बायोमोलिक्यूल्स 11 फेब का लेक्चर देखो, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का डायग्राम है मेरे सामने। हीमोग्लोबिन ए मेड अप ऑफ 4 यूनिट्स, 2 अल्फा 2 बीटा, हमने लिखा है वो। यस सर। हाँ, तो डिराइव्ड प्रोटीन्स भी हो गए हमारे। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने। आपको शायद प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का स्लाइड नहीं मिला। रिकॉर्डिंग भेजा मैंने 11 का, नहीं भेजा? ओके, स्लाइड्स भेजता हूँ मैं इसके। हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सेकेंडरी में हमने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स देखे थे ना, isn't it? अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट, और हमने देखा था वहां पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर में यू हैव डाइसल्फाइड ब्रिजेस। कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं व्हिच आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स? सिस्टीन, मेथियोनिन, है ना। सो जहां पे सल्फर है, हाँ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है, इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं। And your tertiary structure, the shape of the protein is stabilized, and we saw that tertiary structure of a protein is necessary for biological activity. जब तक शेप मेंटेन है तब तक ही उसकी एक्टिविटी होगी। कोई भी हो, हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन कैरी करने का काम तब तक ही करेगा जब तक उसका शेप मेंटेन है। एक बार उसका शेप बिगड़ जाए तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। एंजाइम काम करेगा तभी जब उसका 3 डायमेंशनल शेप फिक्स है। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर gives or confers 3 dimensional structure or conformation था, हमने उसको shape एक। So tertiary structure gives 3D conformation, 3D shape of the protein, and it is important for function. ये NCERT में भी लिखा है, tertiary structure is important, 3D structure is important for biological activity of a protein। लिखा है पॉइंट tertiary structure में, देखो लिखा है tertiary structure, जहाँ पे बोल्ड किया है वहां पे देखो, they mentioned this point। और उसके बाद जब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले पॉलीपेप्टाइड्स एक साथ आके एक प्रोटीन बनाते हैं तब हम उसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लाइक यू हैव इन हीमोग्लोबिन 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये ओवरऑल आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, डिफरेंट लेवल्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आइदर राइट हैंडेड हेलिक्स बनेगा, अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड शीट्स मिलेंगी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होगा एंड द शेप विल बी मेंटेन विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स एक साथ आके फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे। क्लियर बात यहां तक? नेक्स्ट टाइटल दो। ब्रीफली हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। नाउ व्हाई कोलेजन ओनली?
कोलेजेनिक क्योंकि ये जो कोलेजन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिडोमिनेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। सबसे प्रिडोमिनेंट प्रोटीन कोलेजन है हमारी बॉडी। सबसे प्रिडोमिनेंट प्रोटीन पूरे अर्थ पे कौन सा है? प्रोटीन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ये कोलेजन होता है, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा है। क्लोरोफिल में होता है वो। व्हाइट फाइबर्स नहीं, क्लोरोफिल तो पिगमेंट हो गया ना। प्रोटीन बताओ। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, पूरे अर्थ के ऊपर। राइबिस्को। लॉन्ग फॉर्म बताओ उसका। रूबिस्को, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। लिखा है ना हमने? लिखा है या नहीं लिखा? दिस इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। Dominant, or we can say most abundant. Protein in biosphere is रूबिस्को। इसी तरह से लिखा जाता है ये रूबिस्को, और उसका लॉन्ग फॉर्म है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को। दिस इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अभी इतना याद रखो, फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे इसका रोल क्या है। क्लियर? तो देखो कोलेजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो कोलेजन में हमें we get 3 polypeptide chains, and all these 3 polypeptide chains मतलब 3 chains of amino acids, they are in their coiled form and they are coiled around each other. 3 polypeptides are coiled around each other। अब मैं 3 polypeptides बनाता हूं। देखो यहाँ पे ये है एक पॉलीपेप्टाइड। सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कहा जाता है ट्रोपोकोलेजन। 1 चेन। टोटल कितने चेन्स है? 3। सो वी हैव 3 ट्रोपोकोलेजन पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन 1 कोलेजन मॉलिक्यूल। और ऐसे बहुत सारे कोलेजन मॉलिक्यूल्स से हमें व्हाइट फाइबर्स मिलते हैं, सर नॉन इलास्टिक, which provide which type of strength? इलास्टिसिटी तो नहीं देंगे वो। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स कहाँ पे मिलते हैं हमें? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स टेंडन्स में ज्यादा रहेंगे या लिगामेंट्स में ज्यादा रहेंगे? इलास्टिसिटी कहाँ पे ज्यादा चाहिए आपको? टेंडन में इलास्टिसिटी चाहिए या लिगामेंट में इलास्टिसिटी? लिगामेंट में इलास्टिसिटी, लिगामेंट में ज्यादा चाहिए। 2 बोन्स। तो अगर मुझे हैंड फोल्ड करना है तो ये ह्यूमेरस और रेडियोल्ना, इसके बीच में यहाँ पे जो भी लिगामेंट्स है दे मस्ट बी इलास्टिक। अगर ये हार्ड रहेंगे तो मेरा हैंड फोल्ड ही नहीं होगा। लेकिन व्हाई दिस फोल्डिंग इज पॉसिबल? व्हेन आई फोल्ड दिस हैंड, यहाँ पे मेरा एक मसल है जिसको कहा जाता है बाइसेप्स मसल। तो बाइसेप्स मसल अटैच है यहाँ, एक पॉइंट अटैच है यहाँ पे। यहाँ से निकलता है ये मसल, इस तरह से बड़ा होता है बीच में, जिसे बॉडी और बेली ऑफ मसल कहते हैं।
and it comes and attaches here. रेडियो अल्ना पे यहाँ पे जाके ज्वाइन होता है, यहाँ नहीं ज्वाइन होता, यहाँ आगे जाके ज्वाइन होता है। So जब बोन और मसल इसके बीच में कनेक्शन होता है, so muscle is attached to the bone with the help of a tendon. अब ये inelastic, जब मेरा ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है बाइसेप्स, ये इस तरह से समझो, ये मेरा हाथ है बाइसेप्स, ये है टेंडन, ये है टेंडन और ये पूरा मसल है, ओके। तो इस तरह से अटैच है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हाथ ऊपर आता है। अगर ये पार्ट इलास्टिक रह गया तो मेरा मसल कितना भी कॉन्ट्रैक्ट करे, ये इलास्टिसिटी से हाथ ऊपर ही नहीं आएगा। दिस हैज टू बी इन इलास्टिक, तभी मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये हाथ ऊपर है। सेम हैपेंस विथ योर ट्राइसेप्स। अब ट्राइसेप्स रिलैक्स कंडीशन में जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ओपन में है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। सर बहुत ब्लर दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ब्लर दिख रहा है? बोर्ड? हाँ सर। अब दिख रहा है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है मुझे बोर्ड। वो थोड़ी देर के लिए क्लियर होता है, फिर पूरा ब्लर वापस हो जाता है। अब देखो। नो सर। नो सर। किसी को भी नहीं दिख रहा क्लियर? नो सर। नो सर। हाँ, जब आप जूम इन करते तो अच्छा दिखता है। लेकिन जूम इन करूंगा तो उतना ही दिखना पड़ेगा मुझे, छोटा बोर्ड का पार्ट है जो। एक मिनट, ये विजिबल है? यस सर। ओके, तो ये एक चेन हो गया मेरा ट्रोपोकोलाजेन का, कोलेजन में। दूसरा चेन जो होगा वो इसके अराउंड कॉइल है। मैंने रेड में बनाया दूसरा चेन, सेकंड ट्रोपोकोलाजेन। और थर्ड जो है वो भी पहले ट्रोपोकोलाजेन के अराउंड कॉइल्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कोलेजन मॉलिक्यूल, a complicated structure. All these three polypeptide chains, that is 3 tropocollagen molecules, are coiled around each other, and then it forms one molecule of collagen. Many such molecules are linked together to form a collagen fiber. समझ में आई बात क्या हुआ है? So it is like taking 3 threads. अगर आप 3 threads लेते हो अलग अलग कलर के और उनको एक दूसरे के अराउंड कॉइल कर दोगे सिंपली, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द कोलेजन प्रोटीन। समझ में आई बात? ड्रॉ कर लेना डायग्राम में। एंड मेंशन ट्रोपोकोलाजेन, दैट इज अ यूनिट ऑफ कोलेजन। सिंगल पॉलीपेप्टाइड इज टर्म्ड एज ट्रोपोकोलाजेन। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट in collagen, that is what we can call it as tropocollagen. Basic structural unit in collagen molecule, that is tropocollagen. प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व। ये कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन जो होता है काल्विन साइड, वहां पे इन्वॉल्व करो इसको। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये एनिमल्स में नहीं होता। डायग्राम बनाओ और बताओ मुझे, हो जाए तो। ऑनलाइन बैठे बच्चे वो भी बताओ मुझे, डायग्राम हो जाए तो। पॉइंट्स नोट कर लेना सारे। डन हो गया सबका?
और ज्यादा zoom ऑनलाइन हो जो गया। लोग बैठे आपका हो गया डायग्राम? यस सर। रब कर दूं? बनाओ। That's all about structure of collagen. इतना ही लिखना है और डिटेल में। नेक्स्ट टाइटल दो। क्या? वो प्रोटीन है ना, एनिमल प्रोटीन। सो एनिमल प्रोटीन और रादर इट इज गुड। जैसे हमने कहा था ना कि एनिमल फैट इज बैड फैट, उसका बिल्कुल उल्टा प्रोटीन में। एनिमल प्रोटीन्स कैन बी इजीली डाइजेस्ट, प्लांट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना वो लेते हैं ये। हाँ, क्योंकि वहां पे होता क्या, आपके बॉडी में कोलेजन डीजनरेशन होता है ना, तो बॉडी में कोलेजन का जो कंटेंट है, मसल्स में हो, बोन्स में हो, कोलेजन का कंटेंट कम होने लगता है ड्यू टू एजिंग। और प्रोटीन सिंथेसिस की इतनी एबिलिटी भी नहीं रहती एजिंग बॉडी। So you provide ready-made proteins, lot of amino acids. That collagen will be digested. स्टमक में, इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होगा, लेकिन जो अमीनो एसिड्स मिलेंगे उस अमीनो एसिड से फिर से कोलेजन बनाया जा सकता है इससे, एंड देन अ पर्सन कैन रीगेन द स्ट्रेंथ। और जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं दे आर इजीली डाइजेस्टेड एज कंपेयर टू प्लांट डिराइव्ड प्रोटीन्स। और बिल्कुल उल्टा ऑयल्स के बारे में, फैट्स, लिपिड्स के बारे में, जो प्लांट से डिराइव्ड लिपिड्स हैं दे अनसैचुरेटेड लिपिड्स, ऑयल्स थे ना वो लिक्विड थे एट रूम टेम्परेचर, सो दे आर गुड फॉर हेल्थ। लेकिन एनिमल डिराइव्ड जो है दे आर बैड फैट। सो ये डिस्टिंक्शन याद रखना, यू कैन नोट दिस डाउन। द फैट्स फ्रॉम एनिमल्स आर बैड फैट्स, फैट्स फ्रॉम प्लांट्स आर गुड, बट प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल्स कैन बी डाइजेस्टेड इजीली as compared to proteins from animals. Proteins from animals can be digested easily as compared to proteins from plants. Then अब लास्ट हमें देखना है प्रोटीन्स में, जैसे हमने लिपिड्स में टेस्ट देखे थे, देन पॉलीसैकेराइड्स में टेस्ट देखे थे, उसी तरह से वी हैव टू लुक एट टेस्ट्स फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए कौन से टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अब दो ही टेस्ट डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। एनसीईआरटी में तो टेस्ट नहीं दिए हुए, इनके डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। फर्स्ट टेस्ट है जिसको कहा जाता है बायूरेट टेस्ट। बायूरेट ये एक रिएजेंट होता है, ये केमिकल रिएजेंट है, और इस रिएजेंट में है कॉपर सल्फेट। और हमें मालूम है कॉपर सल्फेट जब डिसॉल्व करते हैं हम, it dissociates into Cu2 plus ions and SO4 minus ions, isn't it? That is your copper sulfate. Biurate reagent में copper sulfate, this appears bluish in color. जो बायूरेट रिएजेंट है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। ये पॉइंट्स नोट कर लेना मेरे साथ, दैट विल हेल्प यू। तो कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है नोट कर लो, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो लिखना है आपको। सो बायूरेट टेस्ट में एक रिएजेंट यूज होता है व्हिच इज कॉल्ड एज बायूरेट रिएजेंट, व्हिच इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इट इज ब्लूइश इन कलर। अब जब ये प्रोटीन के साथ मे बी यू वांट टू ट्राई और टेस्ट वेदर योर सॉल्यूशन हैज प्रोटीन इन इट, तब क्या किया जाता है,
आपका अराउंड 2 to 3 ml जो भी टेस्ट सॉल्यूशन होगा, दैट टेस्ट सॉल्यूशन इज टेकन, उसमें हम 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, वी मेक द कंडीशंस अल्कलाइन, इनोवेशन अल्कलाइन इन नेचर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे पूरे कंडीशंस अल्कलाइन हो जाते हैं एंड वी ऐड this biuret reagent, then all this is mixed properly by shaking, टेस्ट ट्यूब में इसको शेक करके मिक्स किया जाएगा इन सारे कंटेंट्स को, और जब आप इसको मिक्स करते हो, अगर प्रोटीन्स हैं, this point is important, if proteins are present in the test solution then color changes to violet pink, जो बायोरेट रिएजेंट है, जो ब्लू था वो वायलेट पिंक हो जाता है. प्रेजेंस ऑफ दिस कलर वायलेट पिंक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द मिक्सचर. अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है देन इट कैन आल्सो appear dark blue in color with higher protein content. Concentration अगर प्रोटीन का ज्यादा है आपके सॉल्यूशन में, it will appear dark blue, otherwise it will appear violet pink. No protein, then it will remain blue, इसका कलर चेंज ही नहीं होगा, it will remain bluish color solution only. There won't be any change in the color of the solution. सर वॉयलेट पिंक के नीचे के लिख- Violet pink and dark blue, अगर बहुत ज्यादा concentration है, if there is सर हमें high नीचे protein का नहीं content, दिख रहा. डार्क ब्लू, वायलेट पिंक के नीचे मैंने लिखा है डार्क ब्लू, अब दिख रहा है? Can you see it now? यस अगर हाई प्रोटीन कंटेंट है तो बायोरेट रिएजेंट टर्न्स डार्क ब्लू, अदरवाइज हाँ बोलो. चेंज ऑफ बायोरेट इनटू वायलेट पिंक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन है तो ये वायलेट पिंक हो जाए. एनी डाउट? समझ में आया टेस्ट? लिख लेना, ये नोट कर लेना सो दैट आई कैन रब इट. दूसरा एक टेस्ट मुझे बताना है, देन वी विल गो टू न्यूक्लिक एसिड्स. इज दैट द लास्ट टॉपिक? क्या? इज न्यूक्लिक Last एसिड topic. लास्ट टॉपिक? न्यूक्लिक एसिड के बाद एंजाइम्स है बेटा. ओके. न्यूक्लिक एसिड लास्ट बायोमोलिक्यूल है, यू कैन से. Aren't then we enzymes have- proteins? क्या? Aren't enzymes also protein? यस, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, बट उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है. Okay. दे आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स. हाँ पर उनका बेसिक कैरेक्टर्स तो प्रोटीन से ही मिलते हैं ना सारे, जैसे अमीनो हाँ, एसिड्स हाँ. का चेन एंड हाँ, एवरीथिंग. लेकिन देखो देन हीमोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन, बट एंजाइम के कैरेक्टर्स हमें हीमोग्लोबिन में नहीं मिलते. एंजाइम्स आर वेरी okay. स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स. So these are special type of proteins which accelerate the reactions inside our body. Metabolic reactions को accelerate करने का काम करती है ये enzymes. Like your Rubisco और कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिसॉल्व करने का काम करता है. अगर एंजाइम्स नहीं है तो लिविंग कंडीशन ही पॉसिबल नहीं. The cell will not survive in absence of enzymes. They accelerate the process. कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो है उसको एक्सेलरेट करने का काम आपके एंजाइम्स करते हैं. सो एंजाइम्स अलग से पढ़े जाते हैं. एंजाइम्स काइनेटिक इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पार्ट. एंजाइमोलॉजी स्टडी ऑफ एंजाइम्स तो हम अलग से लास्ट में पढ़ेंगे. क्लियर है? ये बायोरेट रब कर दो. हो गया?
बताओ भाई, ऑनलाइन बैठे हो गया क्या ये? यस सर। सेकंड टेस्ट है, दूसरा एक रिएजेंट है, जैसे बायूरेट रिएजेंट था उसी तरह से एक और रिएजेंट है, जिसको कहा जाता है निन हाइड्रीन रिएजेंट। इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो, निन हाइड्रीन रिएजेंट, निन हाइड्रीन रिएजेंट। निन हाइड्रीन रिएजेंट डिटेक्ट्स, निन हाइड्रीन रिएजेंट डिटेक्ट्स the presence of, it detects the presence of alpha amino acids. It detects presence of alpha amino acids. तो कौन सा अमाइनो एसिड मैं निन हाइड्रोजन टेस्ट पे डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? हमारे अमाइनो एसिड में से कौन सा अमाइनो एसिड आपको डिटेक्ट नहीं हो पाएगा? बीटा। हाँ बीटा ठीक है, लेकिन अदर देन दैट मेरा जनरल फॉर्मूला क्या है अल्फा अमाइनो एसिड का? आई हैव आर NH2C COH R and H। हम इसको अल्फा तभी कह सकते हैं when all four valencies are occupied by four different groups, तभी ये अल्फा कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा या असिमेट्रिक कार्बन होगा। If this R अच्छा, जब नीचे H हो, हाँ ऊपर H हो। is replaced by H, ये कौन सा अमीनो एसिड है? This carbon is no more alpha carbon. This is the simplest amino acid. कौन सा ये? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। करेक्ट, डायग्राम दिया है देखो इनसीएलटी में, ये सारे कंपाउंड्स के डायग्राम है वहां पे देखो। फर्स्ट डायग्राम, तीन नंबर लेफ्ट राइट साइड का फर्स्ट लाइन में देखो, ग्लाइसिन दिया है ना, लिखा है क्या एनसीईआरटी में? है क्या ये? ग्लाइसिन में मुझे अल्फा अमीनो एसिड नहीं मिलता, मतलब देयर इज नो अल्फा कार्बन, ग्लाइसिन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय नीन हाइड्रोजन टेस्ट। नोट डाउन दिस पार्ट, since alpha carbon is absent in glycine, since alpha carbon is absent in glycine, it cannot be detected by नीन हाइड्रोजन टेस्ट, it cannot be detected by नीन हाइड्रोजन टेस्ट। और ये टेस्ट कैसे किया जाता है? टेस्ट सॉल्यूशन लिया जाएगा, इन टेस्ट सॉल्यूशन the नीन हाइड्रोजन reagent is added, and when this नीन हाइड्रोजन reagent is mixed, और फिर जब उसको हीट किया जाएगा या फिर बॉइल किया जाएगा, heated or boiled, most of the amino acids give purple color with नीन हाइड्रोजन टेस्ट। There are several other colors, हमें उसके डिटेल में नहीं जाना, ट्रिप्टोफैन से अलग कलर मिलता है, एस्पार्टिक एसिड से अलग कलर मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स टर्न द नीन हाइड्रोजन रिएजेंट पर्पल। अदरवाइज नीन हाइड्रोजन येलोइश कलर का होता है, very faint transparent clear yellow color substance when you boil it with test solution, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन में अमीनो एसिड्स है then it gives us purple color. Most of the amino acids turn purple with नीन हाइड्रोजन reagent. Note this point, most amino acids turn purple with नीन हाइड्रोजन reagent.
Done. अब आपको एक होमवर्क है बिफोर टुमारोज lecture. I want you to find out and write down the importance of proteins. Importance or functions. Function or importance of proteins. यहाँ पे HSC टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, NCERT में भी दिया है, लेकिन NCERT में स्कैटर्ड है, HSC में एक जगह पे दिया है. And you can identify several different types of proteins. तो फंक्शन में क्या क्या आएगा देखो. We'll have proteins which are structural proteins like collagen. We have proteins which are enzymatic proteins like Rubisco, जो enzymes है, जो metabolic reactions को accelerate करते हैं. Then we have proteins which are transport proteins. Gaseous transport में hemoglobin involved है, that is a transport protein. Then we have proteins which are involved in defense in our body. हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन्स तैयार होते हैं अपॉन एक्सपोजर टू एंटीजन और पैथोजन. उनको हमने क्या कहा था? वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी तैयार करती है अपॉन एक्सपोजर टू एंटीजन और पैथोजन, एंटीबॉडीज. और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स. गैमा ग्लोब्यूलिन करके प्रोटीन है, उस प्रोटीन से एंटीबॉडीज तैयार होती है. सो डिफेंस में भी इनका रोल है. एंटीबॉडीज. So proteins have role in defense also. सर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा. Defense. Fourth point लिखा है मैंने defense में. There are many proteins which are involved in defense inside our body. For example, आपके globulin proteins, proteins of your antibodies. So वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना globulin protein, antibodies के आगे. Globulin protein. ट्रांसपोर्ट में आप हीमोग्लोबिन लिख सकते हो, ग्लूट4 लिख सकते हो. ये देखो मैंने क्या लिखा है, ग्लूट4 टेबल में दिया है. देखो इंसर्ट में एक टेबल दिया है जहाँ पे ग्लूट4 मेंशन किया है प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में. आ गया है. सर क्या आप जूम आउट करोगे क्या? दिख नहीं रहा. दिया है ना ग्लूट4. ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है. ग्लूकोज, हाँ, enables glucose transport into the cells. दिख रहा है आप? दिख रहा है क्या? यस यस सर. सर. सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, ग्लूट4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है. देन देयर आर प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, plasma proteins, plasma clotting factors. They are all proteins like fibrinogen, fibrin. All these are different types of proteins which are involved in clotting. और कोई role? There are certain proteins which are helpful in lipid transport, जिनको हम lipid transport proteins कह सकते हैं. Lipid transport proteins, which transport only lipids inside the cells. या फिर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में लिपिड लेके जाना, लिपिड ट्रांसपोर्ट करते लिए. और कोई रोल? एग्जैक्टली, रिसेप्टर. रिसेप्टर्स ऑफ, receptors located on the cells, receptors of hormones, receptors of antigens, receptor for different substances. So many proteins are receptor proteins. हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था एक रोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स का. रिसेप्टर मतलब इट विल रिसीव सम अदर सब्सटेंस.
समझो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसका हार्मोन का इफेक्ट है सिर्फ ओवरीज, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे इफेक्ट। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरोन हो मेल्स में, वो तो सारे बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में आता है। Why only few cells show the effect? Because only those cells have receptors for those hormones. तो हार्मोन वहां पे जाके बाइंड होते हैं और उसी सेल में इफेक्ट दिखेगा। अगर सेल के ऊपर रिसेप्टर ही नहीं है तो सेल को पता ही नहीं चले कि ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन है। समझ में आती है बात? सो हार्मोन्स ये इंपॉर्टेंट रोल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ प्रोटीन्स। दे आर रिसेप्टर्स फॉर सेवरल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग हार्मोन्स। और एक रोल में लिख सकता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं 8 पॉइंट ऊपर। Some of the proteins are hormones, जिनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, which is secreted from pancreas, is made up of amino acids. So this is a peptide hormone. Any other role you can think about प्रोटीन्स का? अगर कनेक्टिव टिश्यू में इंजरी हो गई तो कौन सा सबसे ज्यादा सिंथेसिस मुझे करना पड़ेगा? कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस करना पड़ेगा? कोलेजन का ना। तो जब भी टिश्यू इंजरी होती है repair of the injured tissues, it is also brought about by different proteins including collagen. Or anything other than this? Dietary proteins are important. Dietary proteins are important in proper metabolism, growth of individual, etc. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन्स का। और जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, वैसे मसल्स में एक पिगमेंट मायोग्लोबिन टॉक्सिन को स्टोर करता है मसल्स में। करेक्ट। कौन सा पिगमेंट है ये? मसल्स में है, हीमोग्लोबिन की तरह ही है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ये जो मसल में है वो एक ही ऑक्सीजन को बाइंड करके मसल में रख देता है ऑक्सीजन। जब भी इमरजेंसी है तब ये ऑक्सीजन यूज होता है। तो मैं यहाँ पे इसका एक रोल देख सकता हूँ, स्टोरेज। आ रहा है यार? मायोग्लोबिन जो मसल्स में, मसल पिगमेंट, हमने रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स का डिफरेंस लिखा था, वहां पे मायोग्लोबिन के बारे में लिखा है। So these are some basic functions of proteins. Growth और development में proteins are very important. Vegetarian diet is generally very, deficient of proteins. हमें बहुत ज्यादा proteins मिलते हैं non-vegetarian diets, like eggs, chicken, then lean meat. Lean मतलब जहाँ पे fat कम, उस lean meats, less fat, more proteins. Fishes, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और वो एनिमल सोर्स का है, तो इजीली आवर बॉडी कैन डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज दिस एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जैसे आपका बेसन का जो प्रोटीन, बेसन बहुत सारा प्रोटीन ही है। कौन से फैमिली में आता है? टोफू, देन योर पनीर, दे आर ऑल प्रोटीन्स। बेसन जो होता है वो कौन से फैमिली का प्लांट है? चना। वो फैमिली ऐसा है जिसमें मुझे गैमोपेटैलस, वाल्वेट एस्टिवेशन मिलते हैं कैलिक्स में, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर गाइनोशियम मिलता है,
यूनिलोक्यूलर ओव्यूल है, सॉरी यूनिलोक्यूलर ओवरी है. Many ovules are arranged in marginal placentation. Estivation of corolla is vexillary estivation. The leaves are generally compound, very rarely simple. For shrubs, rarely trees. Cosmopolitan. कौन सा फैमिली है? Vexillary फैबेसी. estivation. हाँ करेक्ट. Vexillary estivation कहाँ पे मिलता है हमें? Standard petals, keel और carina. आगे देखो, आगे देखो. हाँ ये वेक्सिलरी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिखा है, लेकिन फैमिली देखना है तो आगे देखना पड़ेगा आपको. हाँ फैबेसी फैमिली है ना. क्या क्या दिए फैबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या लिखा है? एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है फ्लावर? या इर्रेगुलर है? जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक. परसेंट लिखा है ना या नहीं लिखा? देन कैलिक्स 5, Gamosepalus, valvate estivation. Corolla 2 plus, I'm sorry, 1 plus 2 plus 2 united. Innermost 2 boat shaped keel or carina inside which the stamens and pistils are enclosed. Androecium 9 united, 1 free. Diadelphous condition. Gynoecium monocarpellary, superior ovary. Solanaceae में bicarpellary, superior ovary. Liliaceae में tricarpellary, syncarpous, superior ovary. Fabaceae plant से हमें all members of Fabaceae plant, चना और चना के क्लास में जो भी आते हैं similar to चना. सर ये तो दाल होती है ना, मूंग दाल, मसूर दाल, ये दाल, वो दाल, वो सब Fabaceae family से belong करते हैं. And Fabaceae is rich in proteins. Why the fruits of Fabaceae or seeds of Fabaceae are rich in proteins? इसका जो रीजन है वो रूट्स में है. लेग्यूमिनस फैमिली, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम वाले. इतना ज्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है इन प्लांट्स को कि बहुत ज्यादा ये प्रोटीन्स बना सकते हैं. एंड दे स्टोर द प्रोटीन्स, बट दिस प्रोटीन्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन्स. एनिमल प्रोटीन्स कैन बी इजीली डाइजेस्ट. ये फर्क है दोनों. सो नोट दैट डाउन. सो ये कुछ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के. So I think that's all about proteins. एक स्वीटनर भी है which is proteinaceous in nature. कार्बोहाइड्रेट्स में लिखा था हमने artificial sweetener which is protein, sweetest artificial substance. क्या लिखा था? Semen. प्रोटीन. हाँ मोनेलिन लिखा. स्वीटनेस इंडेक्स का एक पॉइंट लिखा था ना हमने, वहां पे देखो मोनेलिन लिखा है क्या? Monelin is used as artificial sweetener. It is sweetest substance. Monelin सबसे स्वीट सब्सटेंस है ये. लिखे नहीं प्लीज. लिखा है क्या? मोनेलिन लिखा है. स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस लिखा होगा कहीं ना कहीं. देखो लास्ट मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे का लेक्चर होगा.
नहीं मिल रहा, लिखा होगा, लिखा है हमने कार्बोहाइड्रेट्स में लिखा है, जहां पे हमने लिखा था फ्रुक्टोज इज द फ्रूट शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर इज फ्रुक्टोज, लीस्ट स्वीट शुगर सुक्रोज इज टेकन एज यूनिट स्वीटनेस, उसका स्वीटनेस इंडेक्स हम 100 लेते हैं और उसके हिसाब से हमने बाकी सारे शुगर्स के स्वीटनेस इंडेक्स लिखे थे, इंडाइसेस लिखे थे। तो देख लेना वो एक बार, वहां पे ये मेंशन किया है मोनिलिन, ये लिख लेना, आपके प्रोटीन के फंक्शंस में भी ये पॉइंट नोट कर लेना। मोनिलिन इज अ प्रोटीन, इट इज आर्टिफिशियल सब्सटेंस, इट इज अ प्रोटीन and it is used as artificial sweetener, very sweet to taste. It is synthesized chemical, ये synthesis artificial है, chemical synthesis किया जाएगा इसका, ये नेचुरली नहीं मिलेगा आपको कहीं से। Yes, लिखा है क्या ऑनलाइन, मिला किसी को मोनिलिन कहाँ पे लिखा है? स्वीटनेस yes Yes, sir, sir. notes में मिल गया है। मिला है, लिखा है ना मोनिलिन? रब कर दो, चलो नेक्स्ट टाइटल दो। टाइम क्या है बताओ एक बार मुझे, है घड़ी किसी के पास? 5-10 मिनट। क्या है, मुझे बहुत ऐसे तकलीफ होती है जल्दी छोड़ने, पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा लेक्चर सुबह होने दो, दोपहर में होने दो, शाम में होने दो, रात में, जल्दी छोड़ना मतलब थोड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी हो जाता है लेकिन बहुत बार नहीं होता। हाँ, लास्ट लेक्चर में थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हो ना आप दिन भर, ठीक है चलो। और ऊपर से केमिस्ट्री चालू है ऑन द टॉप ऑफ दैट, है ना, मतलब बायोलॉजी तो कम है, यहाँ पे केमिस्ट्री ज्यादा है। चलो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, क्या करें। न्यूक्लिक एसिड, मेडिकल में तो एक पूरा बुक रहता है, इतना बड़ा बुक है महादेवन, DM महादेवन ऐसा बुक का ऑथर है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कुछ नहीं होता, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री, ये पूरा पेपर होता है MBBS। तो यहाँ से छुटकारा नहीं है बायोकेमिस्ट्री से, कहीं कहीं भी जाओ आप, इंजीनियरिंग में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल में भी पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे भी जाओ केमिस्ट्री से आप नहीं छूट पाओगे। पूरा कंप्लीट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पेपर होता है। तो डॉक्टर कौन से बेसिस पे लिख के देता है आपको कि ये टेस्ट करो, लिपिड प्रोफाइल करो, ये करो, वो करो, डॉक्टर को कहाँ से पता? उसको सिखाया गया है, उसको पता है क्या टेस्ट देने हैं। चलो न्यूक्लिक एसिड्स बताओ, कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स? RNA DNA। यस, DNA and RNA. Out of these two, which one is most common genetic material, DNA or RNA? DNA। DNA is the genetic material, we can say. Are there any organisms where RNA is genetic material? Viruses। Yes. So only viruses, that too very few viruses, they have RNA as genetic material. Such viruses are termed as RNA viruses, और उनको हम कहते हैं Retrovirus। रेट्रोवायरस, What examples of retroviruses? हमने लिखे थे, निमोनिक दिया था मैंने आपको। यस, कौन सा? यस, वेरी गुड, रियो वायरस। एड्स, दैट इज योर HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मम्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, and RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। ये सारे RNA वायरसेस। Most of the plant viruses are also RNA viruses.
exception to plant viruses, which is not an RNA virus. TMV is RNA virus, tobacco mosaic virus. But ऐसा कौन सा प्लांट वायरस है जो RNA वायरस नहीं है? cauliflower, मजाक mosaic cauliflower. हाँ, cauliflower mosaic virus, CAMV, which is a double stranded DNA virus. लेकिन ये प्लांट वायरस, अदरवाइज सारे प्लांट वायरसेस में आपको RNA मिलेगा, जो जेनेटिक मटेरियल. Now let it be DNA or RNA. Why they are called as nucleic acids? There are reasons behind it. First of all, they are found in nucleus, obviously eukaryotic cells. And second, they are acidic in nature. इसलिए एसिड. पहली बार ये जो न्यूक्लिक एसिड करके जो कुछ भी सब्सटेंस है, पहली बार इसकी डिस्कवरी की by a person known as Friedrich Miescher in the year 1869. He was a physician, ये डॉक्टर था. तो उसने क्या किया, इसके पेशेंट थे उसके पास बहुत सारे, वुंड जिनको हुई थी, उस वुंड में पस हुआ था. तो पस बैंडेजेस उसने लेकर उस पस सेल्स उसने लाइज किए विद सोप सॉल्यूशन. उसने सारे सेल्स को ब्रेक कर दिया और न्यूक्लियस से एक एसिडिक सब्सटेंस निकाला. और फ्रेडरिक मिशर ने जब ये डिस्कवरी की न्यूक्लिक एसिड, इट वाज डिस्कवर्ड ब्लर है. फर्स्ट सेल्स से डिस्कवर हुआ था. ये दिख रहा है आप? यस सर. So he discovered the substance nucleic acids for the first time from first cells, and he called this substance as nuclein. उसने उसको न्यूक्लिन कहा क्योंकि ये न्यूक्लियस में लोकेटेड था, इसलिए न्यूक्लिन. उसके बाद एक आदमी था जिसका नाम था अल्टमन. He coined the term nucleic acid. The term nucleic acid was coined by Altman. Discovery was done by a physician known as Friedrich Miescher in 1869. Note this down so that I can rub it. इतना ही पार्ट में यूज कर सकता हूँ बोर्ड का, बस कुछ नहीं. Then रब कर दो. ऑनलाइन बैठे हो गया, रब कर दो. सो गए क्या सारे? Yes, sir. हाँ. सर न्यूक्लियन के नीचे का सब कुछ मतलब कट हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा. न्यूक्लिन के नीचे मैंने लिखा है अल्टमन. यहाँ पे मैं फिर से वही लिखता हूँ. न्यूक्लिन के नीचे मैंने लिखा है अल्टमन coined the term nucleic acid. This term was given by a person known as Altman. अब मुझे बताओ डीएनए आरएनए किससे बना होता है? पहले तो मुझे ये बताओ डीएनए आरएनए ये जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है या माइक्रोमोलिक्यूल्स है? मैक्रोमोलेक्यूल. Macromolecule. मैक्रोमोलिक्यूल्स है. मैक्रोमोलिक्यूल्स है मतलब मोनोमर्स होंगे या पॉलीमर्स होंगे? पॉलीमर. They have to be Polymers. So nucleic acids are macromolecules and they are polymers. Polymers of what? न्यूक्लियोटाइड. They are
nucleotides, They are polymers of something called as न्यूक्लियोटाइड. ये बिल्डिंग ब्लॉक है, डीएनए आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक और न्यूक्लियोटाइड है. जैसे अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, मोनोसैकेराइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स they are building blocks of nucleic acids. Nucleic acid के building blocks. They are termed as nucleotides. So what I can say, many nucleotides they are linked together to form a nucleic acid, maybe DNA और RNA. तो वो तभी बनता है जब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स एक चेन में लगाए जाएंगे, जब न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर बनेगा. So I can say that a nucleic acid is nothing but polynucleotide, polymers of nucleotide. जैसे पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, वैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड. They are polymers of nucleotides. समझ में आई बात यहां तक? अब हर एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए आरएनए हम बाद में देखेंगे, डिफरेंट अलग अलग से वो डिस्कस करना है, वो एनसीईआरटी में दिया है. लेकिन जब भी मैं न्यूक्लियोटाइड कहता हूं, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और बेसिक रिपीटिंग यूनिट इन अ न्यूक्लिक एसिड. डीएनए हो, आरएनए हो, आपके पास न्यूक्लियोटाइड ही हो. तो इस न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड? मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर, फाइन, बट व्हाट इज देयर इन अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट, ध्यान से सुनो, ये लिखना नहीं अभी कुछ भी, सिर्फ ध्यान दो, बाद में नोट कर लेना. ये न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स. पहला जो कंपोनेंट है उसको कहा जाता है पेंटोज शुगर. पेंटोज मतलब कितने कार्बन एटम्स होंगे बताओ? 5. 5 कार्बन एटम्स. तो पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर. दूसरा कंपोनेंट है जिसको मैं कहता हूं ये nitrogenous base, which can be adenine, guanine, cytosine, thymine, and uracil. uracil, Adenine, guanine, cytosine, thymine. सर आपका बैंडविड्थ uracil. लो आ रहा है. These are nitrogenous yes base. sir. क्या? आपका बैंडविड्थ लो आ रहा है, मतलब बहुत ब्लर दिख रहा है सर. अब शायद रीडेबल है. हाँ दिख रहा है, पढ़ सकते हो ना? दिख रहा है ना क्लियरली? yes sir. हाँ ठीक है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये सिंगल लेटर एब्रिविएशन है. ए एडेनिन इज एब्रिविएटेड बाय ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, थायमिन टी, यूरेसिल यू. ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस. इनका डिटेल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे. नाइट्रोजनस बेसिस 5 डिफरेंट टाइप्स. इनमें ये जो है ए, जी, सी एंड टी, ये हमें मिलते हैं डीएनए में, और ए, जी, सी एंड यू हमें मिलते हैं आरएनए में. थाइमिन आरएनए में नहीं होता, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता. उसी तरह से अगर मैं पेंटोज शुगर देखूं तो मुझे राइबोज शुगर मिलता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलता है डीएनए में. राइबोज का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? C5 C5 H10 H10O4.
O क्या होगा वो बताओ? O2, O5 O5, O5 O5 O2 मतलब वो हो जाएगा आपका लिपिड। C5H10O2 मतलब वो लिपिड हो जाएगा, आपका फैटी एसिड हो जाएगा वो। C5H10O5 CnH2nOn। डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O4 सो सिंपल। डीऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट इन डीएनए, इसलिए उसको कहा जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है और राइबोस शुगर है आरएनए में, इसलिए उसको कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। एंड थर्ड कंपोनेंट दिख रहा है क्या? मैं क्या लिख रहा हूं इस साइड? नहीं सर। नहीं सर। कहां तक दिख रहा है आपको? सर ओके, 3 सो तक थर्ड दिख रहा है। कंपोनेंट लिख लो यहाँ। हाँ, यहाँ पे लिखता हूं मैं थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट है आपका H3PO4। H3PO4 मतलब क्या बताओ? फॉस्फोरिक Phosphate एसिड। phosphoric acid which is also called as phosphate। तीन कंपोनेंट्स होंगे मेरे न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड phosphate। So one nucleotide is formed when all these three are linked together। एक पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस भी अटैच होगा और H3PO4 भी अटैच होगा, तब मेरा एक न्यूक्लियोटाइड बन। समझ में आई बात? And many such nucleotides are linked together to form a single polynucleotide chain, DNA या RNA। अब ये किस तरह से कहाँ पे अरेंज है, कहाँ पे अटैच है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आपको जल्दी छोड़ता हूँ। कितना टाइम क्या बताओ? नहीं नहीं, 3:57। 3 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं। आता ऐश करो, एंजॉय करो 3 मिनट। ये नोट कर लेना। अब कल हम क्या करेंगे, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उस पे कहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, कहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, दैट विल सी टुमारो। रिवाइज करके आना वो पार्ट पूरा। सो स्टॉप हियर टुडे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है क्या मेरी? ऑनलाइन जो बच्चे बैठे उनको आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes sir. Okay, we'll stop here today. We'll continue tomorrow with pentose sugar. So I'm ending the meeting. नोट कर लिया है? नोट कर लिया? एंड कर दूं मीटिंग?